Hi guys, this is my show, The Legit Talks, and we are back. Today in the morning, like at 12 p.m., we have had a session with Mukesh, and it was very productive. It was all about startup and how did you do it and everything. Again, this is like a repeat session that I'm going to do. We had this session; it was supposed to happen a day ago, but that's okay. It was some technical issue that happened on Instagram, so we couldn't upload that video here for you guys. So that's why we have to take it again. And I've already told you about him. You guys know about him. His name is Abhish Srivastav, and the title is called as a startup called a Digimonk. So we are going to talk about. Obviously, you would have got this connection with Digi and Monk. So, but still, we are going to understand more deeply about it and the journey of his. So, I'll just connect him right now. Let's know the unknown, guys. Hello, we are back again. So how are you doing? It's I'm all doing good. How are good too. you? I'm sure that you might be in work today because it's a No, working no. day. Yeah, I was a bit occupied, but still we had this in the plan, so I'm here. Amazing. Thank you so much for taking out this amazing time of yours, valuable one for sure. But we have to tell people about you, right? And about the startup that you have had like from Mm. last 3 years now. So as people get a literal, view from your story that how it started, how everything happened, it is going to just help them. So let's just go with the flow as we went a day ago. I hope that Let's hope, goes good. let's hope for the same. Yes. So how are you? How is I'm, everything I'm happening? completely fine. Everything is going good. We are like back in the Monday wala scenario. Calls, emails, and yeah, and wo. Mm-hmm. Okay, so people are joining and they are eager to listen to your journey. So tell us about So yourself. basically, like I'm someone who belongs from Lucknow only. Like born and brought up in Lucknow, and then everything, my schooling, my college, everything from Lucknow. But during from my college days only, I started like this company called Digimonk. Earlier, I worked with several companies. Just like there was this company like Pixel Technologies. This is based out of Mumbai, and several other corporates. Then वहां से धीरे धीरे उनके साथ काम कर करके आई गॉट टू नो कि क्या है मार्केट में, व्हाट इज द रियल मार्केट अबाउट. एंड देन वो फिर धीरे धीरे होता है कि फिर अच्छा आई एम समवन हु लाइक्स टू वर्क ऑन माय ओन. मतलब मेरे को ना बहुत ज्यादा किसी का इंटरप्शन पसंद नहीं है. सो वहीं से आई थॉट ऑफ कि यार बहुत हो गया, नाउ लेट्स गो ऑन आवर ओन थिंग एंड लेट्स स्टार्ट दिस डिजिमॉन. I liked हाँ, बहुत हो इट्स लाइक गया. यार अब हो गया, कितने टाइम तक इनका सुनते रहेंगे, ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे. अपना करते हैं, अपनी सुनाएंगे सबको. True. I mean, that's how you get this idea of like having something of your own. First thing the entrepreneur experiences is वो एंटरप्रेन्योर तब बन जाता है जब उसको लगता है कि आई डोंट वांट टू बी लाइक हाँ, अंडर समवन like फंक्शनिंग अंडर. functioning under someone. I would love to function under my own rules and principles, and you would start something of yourself. That day, you become an entrepreneur already. The thing is, when you have an idea, you put it into an action. That is entrepreneurship. That is like actual journey that Yes. you starts from there. So, what is Digimonk? How did you coin up this See, term? Digimon is like कि because जब हम लोग मार्केट में, when I was working with other companies and जब as a freelancer भी मैं आया मार्केट में, then I got to see कि भाई during the Mm-hmm. COVID era everyone has been like fooled around कि उनके पैसे ले लिए गए, काम नहीं हुआ या उनके हिसाब से काम नहीं हुआ. So they were like very much frustrated. मतलब हमारी मीटिंग होती थी तो they were like कि पैसा ठीक है, काम ठीक है, पहले ये बताओ सही में करोगे कि सिर्फ बेवकूफ बना रहे हो यहाँ बैठ करके. तो वी हैव टू लाइक बिल्ड अप दैट ट्रस्ट कि Mm-hmm. नहीं नहीं सर मैम ऐसा नहीं है, हमारी ये टीम है, दिस इज आवर फिजिकल एग्जिस्टेंस, ऐसा वैसा सारी चीजें.
So we got this thing in our mind कि भाई हमारे पास लोग कब आ रहे हैं ना जब हर तरफ से परेशान हो चुके हैं. And in today's world, Mm. people go to God or पंडित जी or the priest कि भाई अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, please help us where we have to find our way, what else we have to do in our life. So by this we came up with the term monk and then digital, the digi monk. Wow. So like ultimate solution for people out there, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो डिजिटल हमारे दिक्कत पास हो आओ रही है, हम डिजिटल पूरा दिक्कत हो रही तो solution हमारे देंगे. पास. Yeah. I like this word, yeah. I mean, it actually connects at the normal life also, and also Digi comes with this new stuff happening in the digital world. You get introduced to it. Plus, the reality of this is this never happened only in COVID. This has been happening from so Yes. many years, I guess, in the sense of money. But it was more seen in that period of time where almost all people were like, most of them were like dropped नहीं नहीं out एक्चुअली from एक्चुअली schools and colleges, दिस and वाज ना some द would. मेन रीजन उसके पीछे ये था कि जब बैक इन 2019 जब ये सिचुएशंस होती थी तो Mhm. द पर्सन हु हैज गिवन द कॉन्ट्रैक्ट हैड दैट मच थिंग टू कैच होल्ड ऑफ दैट पर्सन. उनको पता होता था व्हाट इज द फिजिकल लोकेशन, Mhm. ऑफिस कहाँ पर है, टीम कहाँ पर है, दे कैन इजीली कैच होल्ड. कोविड टाइम में ड्यू टू वर्क फ्रॉम होम एंड एवरीथिंग आप क्या ही कर लोगे. कोई आपके 10,000, हाँ No 10,000 access only, रुपये लेकर ना के अपने घर पे बैठा हुआ है, आप देखा क्या ही कर नहीं लोगे कभी. उसका. तो दिस वाज द थिंग Right. कि पीपल लाइक वहां पर उस पीरियड में लोग ज्यादा परेशान हुए. बट ठीक है, देयर वर अ लॉट पीपल जिन्होंने क्या कहते हैं ऑनेस्टली वर्क भी किया. एंड दैट इज द रीजन आज की डेट में उनकी कंपनी थोड़े से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है. अगर वो फ्रीलांसर भी हैं तो वो थोड़े से बहुत अच्छे स्टेज पे पहुंच चुके हैं. Mm. देयर अर्निंग अराउंड लाख से 2 लाख रुपीज पर मंथ. Okay. सो दिस इज द थिंग. Okay, but तो यार अभी आज भी ऐसा ही टाइम है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन दिस लिटिल टाउन एरिया लाइक नॉट बिग सिटी काइंड ऑफ बट नियर बाय दैट एंड near to our town area there is one big city. From there I am doing this digital stuff that I'm supposed to do for the show. So again, travel, see that, be aware of that and everything. We still count on, as digital, we still count on going on online and making it sure that it is going to happen for us safely. So that is going to stay like an option forever because you won't be able to find like city Lucknow बहुत बड़ा है. You will find other hubs also करेक्ट. related to any problem that you're going to face. But what about us? Like almost like it's too far, or maybe it's like See, you won't be able to go in and that see things. in How that we are going to access? situation, you, my personal suggestion is that you should rely on someone whom you know or has been referred by someone you know. वहां पे सिचुएशन ये होती है कि Mm. आपको ना थोड़ी सी आपका ट्रस्ट वहां पर रहता है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड बीइंग वेरी फ्रैंक, वी आल्सो गेट अ लॉट ऑफ रेफरल्स कि दिस पर्सन सो एंड सो हैज रेफर्ड योर नेम और योर कंपनीज नेम. सो वी गेट दिस. एंड हमारे साथ ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ सिटीज. वी हैव इंटरनेशनल क्लाइंट्स एज वेल. पीपल आर वर्किंग विद अस फ्रॉम कनाडा, Mm. फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. सो वो हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े हुए हैं. सो देयर इज सम ट्रस्ट. आज की डेट में भी देर आर पीपल हु आर लाइक वरीड अबाउट, परेशान है इस सारी चीजों से. बट स्टिल देर आर ऐसी सिचुएशंस भी हैं कि जहां पर हम लोग उनका ट्रस्ट वापस से रीगेन कर रहे हैं. एंड दे आर गिविंग अस अ डिसेंट अमाउंट ऑफ वर्क एवरी मंथ. Okay, so what recent projects you are into See, right right now? now we are completely into because as you might be aware of the UPGIS, that was the Global Investor Summit. So in that we got like we saw another space. There are a lot of small businesses जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा. एंड वो लोग अपने इसी में परेशान है कि Mm. उन्होंने कोविड टाइम में शुरू किया या आफ्टर कोविड कोविड शुरू किया एंड उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा. सो व्हाट वी थॉट कि वी आर गिविंग देम बजट फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स लाइक वेबसाइट्स. एंड अगर उनके पास ई कॉमर्स पोर्टल्स, अगर उनके पास कोई कमोडिटी सेल कर रहे हैं वो, देन वी आर गिविंग देम ई कॉमर्स थिंग्स एज वेल. सो इट्स लाइक in a decent Hmm. amount of around 15 to 20,000, we are giving them a complete e-commerce thing similar to Amazon or Flipkart. अच्छा.
So we are like targeting the small businesses because हमें पता है कि जो बड़े बिजनेस है, they are already grown up, वो हमारे साथ उतना easily नहीं आएंगे. They need some of the other things जो उनको अट्रैक्ट करें. बट स्मॉल बिजनेसेस लाइक वो हमारे साथ एग्री हो जाते हैं बहुत सारी चीजों पर, एंड वहां से फिर वो हमारे ये होता है, एक होप होती है हमारे पास कि यार ये आज छोटे हैं, कल को जाकर के जब भी बड़ी कंपनी बनेगी, एंटरप्राइज बन जाएगी, देन दे विल आल्सो रिमेंबर अस. सो दिस इज द थिंग. Amazing. We were always looking for such places where, we would just feel safe. Like, सोचा तो है, आइडिया तो है, इसको बड़ा करने का मन भी है, लेकिन जिसको देंगे वो छोटा ना कर दे इस चीज को, या फिर कहीं लॉस ना हो जाए, पैसे कहीं वेस्ट ना हो जाए हमारे. तो इट्स लाइक प्रॉब्लम है, यू हैव, उनके पास लिमिटेड बजट है, दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, सो हमें उनको केटर करना है. एंड अगर हम बड़े बड़े पे जाते रहेंगे तो ऑब्वियसली हर कोई चाहता है रिलायंस और अडानी ग्रुप के साथ काम करे, बट नहीं मिलता ना, बड़ी बड़ी कंपनीज को ही मिलता है. एंड द ड्रॉबैक ऑफ इट इज लाइक, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ सोच लिया है, आई हैव अ स्टार्टअप थिंग इन माई हेड, मेरा आइडिया काफी अच्छा है, मैंने तुमको शेयर किया, मैंने तुमको बोला कि मेरे को इसको डिजिटली नोन करना है और इसको हर तरीके से अवेलेबल करना है लोगों की तरफ से. मतलब थ्रू वेब पेज हो या थ्रू कोई स्पेसिफिक सोशल मीडिया साइट हो, वट एवर, आई हैव टू मेक इट अवेलेबल एवरीवेयर फॉर पीपल आउट देयर. बट उसके बहुत सी टेक्निकलिटी टर्म्स मुझे नहीं आते हैं, ऑब्वियसली मुझे नहीं आएंगे. सो इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, हाउ टू ग्रो इट ऑन इंस्टाग्राम और मे बी स्पेसिफिकली हाउ टू ग्रो इट ऑन यूट्यूब, तो इसका जो वो एक ये देते हैं, चार्ट देते हैं, फ्लो चार्ट देते हैं, ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है, एंड एवरी प्रोसेस इज गोइंग टू टेक मनी आउट ऑफ इट. यू आर गोइंग टू पे फॉर एवरीथिंग. सो जैसे वो जो प्रोसेस बताते हैं, हाउ आर यू गोइंग टू बी सो श्योर कि यही तरीका है? एक्चुअली क्या है ना, आपको प्रोसेस को एनालाइज करना पड़ेगा पहले कि ये जो चीजें कह रहे हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है कि नहीं. आज की डेट में हर किसी के पास स्मार्टफोन है, आप हर एक चीज को गूगल कर सकते हो. अगर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होगी तो गूगल पर जरूर होगी. फर्स्ट थिंग, क्रॉस चेक ईच एंड एवरीथिंग. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिकली पॉसिबल होने के साथ साथ ना आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि यार द अमाउंट विच दिस पर्सन इज आस्किंग, ये इसमें फिजिबल भी है कि नहीं. ये ऐसा तो नहीं कि ये काम सिर्फ 2-3 हजार का एंड इज आस्किंग फॉर 15 और 20,000, तो ये आपको मार्केट कंपैरिजन करना पड़ेगा. या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यार ये काम तो बहुत महंगा होता है. इफ समवन सेज कि आई विल मेक एन 3D एनिमेटेड वीडियो विद इन 2,000 रुपीज, दिस इज इम्पॉसिबल. 3D एनिमेशन इज समथिंग वेरी डिफरेंट. 2,000 रुपए में कहाँ से कर लोगे आप? दैट मीन्स दैट पर्सन इज फूलिंग यू अराउंड. वो आपसे 2,000 रुपए क्योंकि आप ट्रस्ट कर जाओगे, बिकॉज दैट इज द चीप एंड द बेस्ट थिंग. आप तुरंत 2,000 दोगे एंड द पर्सन विल वैनिश. खत्म. करेक्ट. एंड टुडे लाइक एक जगह से सब कुछ चीजें नहीं कर सकते. यू हैव टू बी प्रेजेंट ऑन ऑलमोस्ट अदर प्लेटफॉर्म्स टू. लाइक यू हैव टू हैव दैट स्पेक्ट्रम. तो उसके लिए यू नीड टू नो, यू हैव टू प्रीटी मच डू योर होमवर्क. इधर ऐसा होना चाहिए, उधर ऐसा होना चाहिए. मेक अ प्लान, मेक दैट person understand. Like if I'm coming to you, I'll have to make you understand मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, ऐसा ऐसा है. You will tell me that it is feasible or not, it is going to happen or not, and when it is going to happen, how much days or time it will take. See, the thing is why people are onto this content creation and digitally marketing everything, that they want to do it out there, is just because they know it is going to get monetized at some level at some point of time. एक प्रॉब्लम है मार्केट में भी. वो प्रॉब्लम ये है कि आज की डेट में थैंक्स टू यूट्यूब हर कोई ना फ्री सेशंस एंड लाइव क्लासेस एंड ये सारी चीजें अटेंड करके दे गेट टू नो हाउ टू यूज कैनवा, they get to know how to use ChatGPT, they get to know how to boost the post, and they call themselves a digital marketer. ये बहुत बड़ा myth है मार्केट. कैनवा से डिजाइन बना लेना, ChatGPT से कंटेंट ले लेना और एक नॉर्मल बूस्टिंग कर देना, दिस इज नॉट एनफ. आपका बिजनेस अगर इसी भरोसे चल जाता तो हमारी जैसी और एजेंसीज नहीं एग्जिस्ट करती. There are lot more things. आज की डेट में ईमेल मार्केटिंग के बारे में पूछ लो किसी भी आप न्यू एज डिजिटल मार्केटर से, उसको कुछ नहीं पता होगा. वो कहेगा ईमेल मार्केटिंग मतलब कोल्ड ईमेल. उसको अपनी ईमेल कैंपेन को ट्रेस करना तक नहीं आता होगा. उसको पूछेंगे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताओ जिससे ट्रेस कर सकते, उसको पता ही नहीं होगा.
तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स भाई, आपको पता चलना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो मार्केट में, क्या है चीजें। एंड सिर्फ और सिर्फ बूस्टिंग अगर करना होता तो आराम से आप भी 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए डालो, बूस्ट करते रहो, यू विल गेट ऑडियंस। नहीं पॉसिबल ऐसा। हम्म टिल डेट आई एम टेलिंग यू दिस इनसाइडर, आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में एवरी डे फ्रॉम लखनऊ मेटा अर्न्स अ रेवेन्यू ऑफ अराउंड 25 lakhs पर डे। 25 लाख हम्म रुपीज पर डे मेटा अर्न करता है। किससे? अननोन एडवर्टीजमेंट से, जिनको सिर्फ बूस्ट कर दिया गया है। नोन हम्म टीसीज डिसाइडेड टारगेट ऑडियंस नहीं है, एज ग्रुप नहीं है, इंटरेस्ट नहीं पता है, वो कहीं ना कहीं भी ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं वो एडवर्टीजमेंट्स, और 25 लाख रुपए आराम से कमा रही है बिना बिना कुछ किए। हम्म हाँ हाँ तो दिस इज द थिंग, ये लोगों को समझना पड़ेगा। एंड जब तक ये नहीं समझेंगे, और जो लोग समझ जाते हैं दे गेट इनटू दिस, जो नहीं समझ पाते हैं दे लाइक वो ऐसे ही फूल होते रहते हैं टोटली। एंड चीज ऐसी है कि अगर हम लोग सोचते हैं डिजिटल मार्केटिंग करवाने का भी, या फिर डू वट एवर यू लाइक टू यू मेक इट स्प्रेड, तो उसमें जब तक जाएंगे नहीं ना, तब तक वो सारी कॉन्सिक्वेंसेस पता भी नहीं चलेगी, उनसे जब बातचीत नहीं होगी। द फ्रेंड यू आर सपोज टू बी अ फ्रेंड ऑफ द पर्सन हु इज गोइंग टू हेल्प यू, लाइक यू आर गोइंग टू हेल्प देम। तो उनको यार एक ये रहता है, एक होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, एक बॉन्ड होना चाहिए। अगर कुछ भी दिक्कत हो जाती है तो दे आर एबल टू आस्क यू सिली से सिली चीजें, क्योंकि गूगल ऐसी चीज हो गई है अभी कि अगर तुम उसको पूछोगे इज लाइक आई हैव ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट, लाइक हाँ, ऐसी चेंगड़ी करने के लिए आई आई पुट दिस लाइक इज cigarette smoking very good for health, then Google says like actually I'm a dentist, okay, I am not going to do that, but I have asked that, और गूगल बोलता है कि हाँ ये तरीके के अगर आप सिगरेट्स लेते हो तो इट डजंट हार्म यू। सो आई हैव कनेक्टेड दिस थिंग फॉर एवरीथिंग। लोग क्या सोचते हैं, यूट्यूब पे सब मिल जाता है यार, फोन खराब हो गया चल इसको ठीक हाँ, करेंगे, यूट्यूब पे वीडियो देख ले, गाड़ी का चक्कर निकल गया उसको यूट्यूब देख लेंगे, कर लेंगे। नो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर एवरी टाइम, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एक्चुअली क्या ऑलमोस्ट है ऑल ना, द टाइम। इजिली अवेलेबल इंटरनेट एंड इजिली अवेलेबल हम्म कंटेंट, ये लोगों का ना एक तरीके से हम्म लोगों को आज के टाइम पे लोग इंडस्ट्री खड़ी करने को रेडी है, यूट्यूब वीडियो देख करके वो हाँ सब कर ले। हाउ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट हाउ इट हैज बिकम दैट पावरफुल। जैसे हम लोगों ने वो चीजें बनाई है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा स्टार्टअप है, मेरा स्टार्टअप है, उसको ठीक करने के लिए अगर मैं यूट्यूब से ही करा लेती तो यार अभी तक मैं कहाँ नहीं पहुंच जाती, इतना सब कुछ करने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती ना। वो ऐसा होता नहीं है। आप यूट्यूब से जितनी भी चीजें देख लो, यू विल गेट टू नो हैक्स, यू विल गेट टू नो लॉट मोर थिंग्स, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, लाइक अगर कुछ करना है, वहां तक पहुंचना है, ये जो बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग तुम लोग रोज देखते हो सुनते हो, लिस्ट ऑफ मिलियनर्स, लिस्ट ऑफ बिलियनर्स, वो ऐसे ही नहीं हुए हैं। दे हैड अ कंसिस्टेंट टाइम, दे हैड पेशेंस ऑल्सो, एंड दे वेंट थ्रू अ स्पेसिफिक पाथ। वो ऐसे ही यूट्यूब या इंटरनेट पे जाके उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो हार्डली अर्न जो होता है ना, जो तुमने कमाया हुआ होता है, जो मुश्किलों में जाते हो, सब रियलिटी देखते हो, जो इंटरनेट पे वो रियल, ऑलमोस्ट रियल नहीं है इट्स ऑल रील। तो ये तो समझ गया है कि जब तक मेहनत ना करो, जब तक अपना होमवर्क ना करो, तब तक तुमको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो तुम इंटरनेट पे सोच रहे हो कि हाँ देख के इतना ये मिल चीज पता है, जाएगा। आजकल की जनरेशन को, द लाइक द प्रेजेंट न्यू अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स, इन लोगों को ये चीज समझना और ये समझाना बहुत जरूरी है। ये नहीं समझेंगे ना, दे विल हम्म वेस्ट ऑल देयर मनी, वेदर इट इज देयर और देयर फादर्स, हम्म जहां से भी उन्होंने मांगा है वो पैसा, बोरो जो भी किया है उन्होंने, बट वो सब वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आप मार्केट ट्रू। में उतर जाओ, मार्केट अवेयरनेस में तो आपको होना पता होना चाहिए चाहिए इसके कि मैं बारे क्या में। करने जा रहा हूँ, क्यों करने जा रहा हूँ। तो वो गैप एग्जिस्ट करता भी है जिसको मैं फुलफिल करने जा रहा हूँ कि नहीं करने जा रहा हूँ। हम्म गैप एग्जिस्ट करता नहीं है, आप फुलफिल करने चले जाओ, राइट, व्हाट इज द नीड ऑफ फुलफिलिंग दैट भाई। एंड true. And you have to take care of all the money that you have earned, you know, you have to be very smart right now. It's आज too की डेट में much. मार्केट में आपसे पैसा लेने वाले और आपको पैसा कमा के देने वाले
दोनों बैठे हुए, इट्स जस्ट यू हैव टू डिसाइड द पर्सन, ये पैसा मेरा ले लेगा कि ये मुझे Yeah. कुछ कमा के देगा, ठीक है ना? And जब तक Right. आप डिसाइड, So the falling into the market is like not that easy. You have to know आज की everything. डेट पे ना आप मार्केट में आइए और सिर्फ आप इतना बोल दीजिए कि आई एम हियर विद अराउंड 50,000 or 1 lakh rupees in my pocket and I want to run any business which can give me a good revenue. You will get around Hmm. more than 5,000 ideas within a time span of hardly 2 to 3 hours. 5,000 आपको आइडिया मिल जाएंगे कि ये Oh. कर लो, वो कर लो, ये कर लो. No one will get into this कि भाई वो आपके साथ बैठ के बिजनेस नहीं करेगा, Hmm. ठीक है? It's just Right, right. हाँ. So now you would know what is right and what is Decide. wrong. मतलब आपको कोई समझाने नहीं आएगा हर बार, ठीक है? वरना you might have seen these I don't know I should say it here or not, but there are a number of real estate brokers who just come up कि भैया यहीं से बस ये प्लॉट खरीद लीजिए, यहाँ से हाईवे निकलना है, यहाँ से वो निकलना है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ रहा है, अंबानी जी ये फैक्ट्री लगा रहे हैं. तो उसको पता है कि मेरी जेब में 10-15 लाख रुपए में प्लॉट खरीदने आया हूँ, मुझे बेवकूफ बना रहा हूँ. इतना अगर अच्छा इतनी अच्छी प्राइम प्रॉपर्टी तो मुझे बेच रहे हो तो खुद ना खरीद लेते तुम. ये तो सबसे पहला सवाल आता है, तुमने क्यों नहीं लिया अभी तक? तुमने लिया है क्या? एक दो बार बोल के दिया मैंने, कहा यार इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर वहां से एक्सप्रेस में निकलेगा और भी निकलेगा, तुम मुझे बेच करो, खरीद दो खुद. तो यार लाइक नहीं भैया, मैंने क्या भैया जवाब ऑलरेडी मिला? 4 प्लॉट होल्ड कर रखे हैं उस पर. मैंने कहा अच्छा ऑलरेडी 4 खरीद रखे. कह रहा हाँ भैया पैसा नहीं है इसलिए कमा रहा हूँ लोगों को बेच बेच करके और फिर खरीदूंगा. मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया भाई. ये सारी चीजें होती रहती हैं. नहीं, बट हर तरीके का फ्रॉड अवेलेबल है बाहर, और हम लोग बहुत जल्दी सुन लेते हैं क्योंकि हमें नीड होती है उस चीज की. तो मैं तो बोलूंगी डो नॉट रश, थोड़ा सा टाइम लिया तो भी चलेगा, बट जस्ट मेक अ वेरी कैलकुलेटिव डिसीजन ऑन इफ इट कम्स टू मनी. इतना जल्दी रिड मत हो जाओ उससे, डोंट गेट रिड ऑफ इट वेरी सून. लाइक love it, keep it with you for a long time, study over something and put that money onto a valuable thing which is going to help you in the future. True. So I just talk about and I just listen about like digital marketing, digital. मैं पागल हो गई हूँ. मैं मेरे को समझ में ही नहीं आता है कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं. मेरे को जितने भी यंगस्टर्स मिलते हैं दे जस्ट नो दैट आई हैव डन दिस कोर्स दैट कोर्स, और उसमें डिजिटल मार्केटिंग की पॉइंट होता है. So how today this digital marketing has made its place in India? At least let's just talk about India Just first. talk about completely India. So obviously this is not a new term that needs any introduction in India. It's just कि ये पहले बड़ा ही नॉर्मल टर्म था, अब ये ग्लैमराइज हो गया. और इसकी वजह से ना हर किसी को लगता है डिजिटल मार्केटर मतलब अलग ही है. हर कोई ये समझता है कि एक बढ़िया एसी केबिन में बैठ के लैपटॉप पे हम लोग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, हमारे कैनेडियन क्लाइंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, ये है वो है. नहीं होता है, कुछ नहीं. फिर कहीं देखा हुआ है ये? यही बोल सकते हैं ना यार, और क्या ही बोल सकते, कहीं ना कहीं देखा हुआ कुछ है. नहीं होता है. डिजिटल मार्केटिंग एक कंबाइंड टर्म है. इसके अंदर बहुत सारे बाइफरकेशंस हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं अब जो न्यूली डिजिटल मार्केटिंग में इंक्लूड हो गई हैं, और कुछ जो कि डिजिटल मार्केटिंग में एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन इंडिया में उसको डाल दिया गया है, ठीक है. अच्छा, ऐसा हाँ, भी तो है? वो सारी चीजें हैं. अब लाइक इफ यू जस्ट टॉक अबाउट एनिमेशन, एनिमेटेड कार्टून्स एंड डिफरेंट कैरेक्टर्स हम लोग बैक इन 90s से देखते चले आ रहे हैं, बट वो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट नहीं है. आज की डेट में लोग एनिमेशन को भी डिजिटल मार्केटिंग कंसीडर करते हैं. अरे मैंने एक बंदे से बात की, वो बंदा मुझे पूछता है कि दी आई वांट टू गेट इनटू दिस फील्ड जो एनिमेशन का है, लेकिन वो डिजिटल मार्केटिंग का के थ्रू होगा. मैंने बोला क्या, मेरे को समझा ही नहीं, तो क्या बोल रहा है? डिजिटल मार्केटिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट, एनिमेशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट.
तो बोलता है कि these are the courses and I have to be aware about animation plus digital marketing. I want to do both at the same time. It's like ये तो बाउंसर है, यहाँ इतना टाइम लग जाता है एक चीज सीखने को, ये सब क्या है. बाउंसर जा रहा है ऊपर से, समझ नहीं आता है क्या करना चाह रहे हो. Literally, you have to be focused on at least one thing because these are different terminologies, a different part of the world. क्या है ना, ये कुछ और ही है. लोग You have to market understand in को and out. अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ रहे हैं. Animation is completely different thing. Animation needs time. There should be a blueprint. There should be a storyline. जिसके हिसाब से हम animated characters को create करेंगे, animate करेंगे, and this is how it works. But अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में उसको जोड़ोगे तो उसका कोई रिलेशन नहीं है डिजिटल मार्केटिंग से. ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इज व्हाट ऑल अबाउट. अब सोशल मीडिया मार्केटिंग इज जस्ट अ वर्टिकल. डिजिटल मार्केटिंग इज आल्सो रिलेटेड टू एसईओ, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसईओ. बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है. वन इज ब्लैक हैट एंड द सेकंड इज व्हाइट हैट एसईओ. और लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में. There is one also, there is technical SEO, on-page SEO, off-page SEO. इनको पता ही नहीं है. If you just ask them to, मतलब there are n number of digital marketing academies जो सिखाती हैं बच्चों को कि you can be a digital marketer, you can earn around 35,000 per month. This is all the hoardings and banners they have all around the city. मैंने एक बार एक academy के through interns hire किए. Day one we all were sitting in the conference room. हमने उनसे सिर्फ इतना बोला, this is the topic, these are 10 keywords, I want some opportunity keywords from for the same. वो कह रहे हैं सर अपॉर्चुनिटी कीवर्ड क्या होता है. तो पहले तो मुझे इतनी गुस्सा लगी. मैंने कहा यार एक बात बताओ, ये क्या है, ये मजाक चल रहा है यहाँ पर क्या. Then I was like, I mean, यहाँ पे भी फ्रॉड हो रहा है. यहाँ पे भी पता नहीं क्या सिखा रहे हैं बच्चों को कुछ नहीं डिजिटल आता मार्केटिंग के बच्चों नाम पे. They have zero knowledge. अरे तो फिर उनको वो किस बेसिस पे उनको ये कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं. I can show you around more than 5 to 6,000 children who are learning digital marketing, getting their courses completed every month. और वो क्या कहते हैं, नील बटे सन्नाटा वाला हाल है उनका. ओह यार, ये तो बहुत हो गया यार. This is not the good way. I mean, how these kids are going to face themselves in the market then with no knowledge or with less knowledge. एक कैंपेन डिजाइन करने को बोल दो कि ये हमने क्रिएटिव बना दिया है. What you have to do is plan a campaign, setting blank. सर अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा, ये मुझे थोड़ी पता है. अगर मैं बताऊंगा तो मैं कर भी लूंगा भाई. ठीक है. एंड उसके अलावा कि उनको ये भी पता है कैंपेन कैसे लगाना है. एसईओ मैं उनको जितने ही बच्चे होते हैं, आई हैव टू जस्ट, मैं एक किसी वेबसाइट का एडमिन पैनल ओपन करके दे दूंगा. दे विल सिट लाइक, अरे क्या है, करो सर, इसमें कैसे होगा, तो कहाँ होगा भाई. ओह, तो मतलब शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा फिर से, इतना सब कुछ होने के बाद भी. इट्स जस्ट लाइक पीपल आर ईटिंग द मनी. आई हैव टू लाइक जस्ट कंट्रोल माय सेल्फ कि नहीं यार, पहला दिन इन लोगों का डांटना वाटना कुछ नहीं. इन लोगों को मना करना है, प्यार से मना कर दो. उनकी भी गलती नहीं है यार, उनको तो पता ही नहीं था. उनको तो जैसे कम रेट में पता चला कि यार ये हो रहा है, तो ये लोग वैसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं उस चीज की तरफ कि यार कम में अच्छा मिल रहा है तो चलो कर लेते. कुछ नहीं आता उन बच्चों को. और उन बच्चों को छोड़ दीजिए, जो टीचर उनको क्लास में पढ़ा रहा है उनको भी कुछ नहीं आता है. हाँ, ये तो यार, ये तो मैंने देखी है. ये तो मैंने देख लिया. See, the thing is, we have a school here, we run the school, and मैंने अपने शो के लिए पापा को बताया कि I want to get this interview thing done क्योंकि मुझे मेरा टीम बनाना है. तो यार 112 ये थे इंटरव्यू, लाइक ये थे कैंडिडेट्स थे, और हम सारे के सारे इंटरव्यूअर्स बैठे थे, और एक नहीं, दो नहीं, 10 लोग बैठे थे, क्योंकि 10 को पता था कुछ ना कुछ. और
फिर हम लोग जब चाहते हैं तो हम लोग परफेक्ट चाहते हैं, क्योंकि स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर एजुकेटेड होना चाहिए, अनएजुकेटेड या फिर इलिटरेट की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। हाँ। तो हमने एकदम टाइट रखा था। और जैसे जैसे मैं कुछ नॉर्मल पूछ रही हूँ कि दे कम विथ अ रेज्यूमे एंड दे मेंशन देयर कि क्या बोलते हैं उसको, ग्राफिक्स डिजाइनर हूँ, 2 years एक्सपीरियंस एंड ब्ला 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 स्टफ। सो आई आस्क्ड जस्ट नॉर्मल वन क्वेश्चन दैट व्हाट इफ आई वांट टू क्रिएट अ लोगो, मुझे लोगो चाहिए है, एक टॉक शो है, आप कैसे बनाओगे? तो दे आर लाइक कि मैम कैसे बनाएंगे, हम लोग ये यूज करेंगे, वो टूल यूज करेंगे। लाइक नो, व्हाट स्ट्रेटजीज यू आर गोइंग टू यूज? एंड दे गेट ब्लैंक विद इन अ सेकेंड। लाइक मैम कौन सा टॉक शो है, कैसा टॉक शो है? वहां पर टाइम पास कर रहे पूछ के, बट नो वन वॉज टेलिंग मी व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट। इट वॉज इज वेरी जनरल क्वेश्चन। द थिंग इज, मार्केट कहाँ से पढ़ के आ रहे, मेरे को मार्केट पूछने की में हिम्मत नहीं थी। आज के टाइम पर ना, दे आर टीचिंग लाइक जो उनका करिकुलम है ना, दे आर टीचिंग देम टू बी स्लेव्स। आई एम सॉरी टू से दिस, बट दिस इज द फैक्ट। दिस इज द truth. ठीक है, Why you are sorry to say? और This is happening out there. People are agreeing to this fact. उनको कुछ नहीं पता है। You just give them one. I can just give you a small example. Mm. एक ई रिक्शा या ईवी ब्रांड है। I asked one of the interns to make a logo. यार एक लोगो बनाना है EV में। ठीक है सर, अरे ईवी तो आजकल बहुत फेमस है, बहुत आइडियाज है मार्केट में। मैंने कहा बनाओ। वो बना करके लाया, मेरा मूड खराब हो गया पूरा। देखिए क्या लेकर के आए, क्या हुआ? ये कोई कलर कॉम्बिनेशन है, कलर पैलेट क्या है इसका? कह रहा सर ब्लू है, ग्रीन डाल दिया क्योंकि ईवी है, और ये डाल दिया, वो डाल दिया। लाइक भाई समझो पहले क्या करता है, क्यों कर रहे हो? मना कर देते हैं, मैं किसी और से करा लेता यार। तो इनको कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। इट्स लाइक वो फैसिनेटिंग वर्ड मिल गया ईवी, सीधे दिमाग में ओला इलेक्ट्रिक आ गया इनके। ठीक है, और बस उसी के अराउंड शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फॉर अराउंड 2 months आई हैव मेड माई टीम टू लर्न। आई हैव शोड देम डिफरेंट लोगोज कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स लाइक टोयोटा है, hyundai है, एंड सुजुकी इज देयर, ठीक है, एंड एप्पल का है, और डिफरेंट बड़े बड़े लोगोज हमने दिखाए इनको कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड, ये क्यों ऐसा है। तब आज जाकर के द सीनियर ग्राफिक डिजाइनर ऑफ माई टीम, उसको बस बताना है, तब वो बना करके दे देता है। दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस। आपको बहुत सिखाना पड़ता है। यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट इन योर टीम मेंबर्स, वरना वो नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इस भरोसे बैठ जाऊंगा कि एकेडमी वाले तो सिखा के भेजेंगे, कि कुछ नहीं सिखा के भेजेंगे, मेरी छोटी मोटी चलती हुई दुकान बंद हो जाएगी कंप्लीटली। मतलब ये फ्रॉड होने को बचाने के लिए कुछ और चीज खोलना पड़ेगा। मुझे तो लगता है तुम्हें ही खोलना चाहिए। डिजीमॉन्क के अंडर में कोई एक और ब्रांच खोल दो जिसमें एकेडमी होगी और ये लोग सब पढ़ाई करेंगे और लिटरल नॉलेज। आई एम समवन, क्योंकि आई एम अ वेरी बैड टीचर टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं किसी को समझा नहीं सकता हूँ। तुमसे हो रहा है करो, नहीं हो रहा है छोड़ दो, मैं खुद कर लूंगा। Don't be that, यार। There are a lot of people out there who needs help. I am like, मत करो। मैं बड़ा ही वो हो जाता हूँ कि यार क्या ही है, तुम लोग को बैठ के सिखाना पड़ रहा है एक चीज नहीं कर पाते हो तुम लोग खुद से, ये है वो है। मेरे को बहुत बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ उस सिचुएशन में जाकर के। एंड उनको सिखाना तो मतलब अनदर लेवल ट्रॉमा है मेरे लिए। पेशेंस है ही नहीं ना यार, कैसे समझाएंगे? हमारे पास इतनी सारी चीजें करने को, प्रोजेक्ट्स आर लाइंड अप, पीपल आर कमिंग फॉर हेल्प। दिस इज नॉट द टाइम टू लाइक टीच देम ऐसे हर छोटी चीज। बेसिक तो सबको पता होना चाहिए। जो मुझे लगता है ना कि ये जितने आए थे इसमें से एक अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा सेंसिबल है, ही और शी इज सेंसिबल है ना, इसको ले लो। 2 महीना रखेंगे, धीरे धीरे सिखाएंगे, शायद 2 महीने बाद वी गेट समथिंग पॉजिटिव, वरना कोई बात नहीं भैया, दूसरा ढूंढेंगे। बट यार दिस इज द बेटर ट्रूथ आउट देयर। लाइक नहीं है, नॉलेज में भी कहीं ना कहीं फ्रॉड हो रहा है, बच्चों को कुछ और पढ़ाया जा रहा है। कुछ बच्चे तो सीखने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं और करके कुछ और आते हैं, और बाहर पैसे कहाँ से कमा रहे हैं, तो फालतू चीजें करके कमा रहे हैं। दिस इज नॉट राइट। वेरी ऑनेस्ट,
इन लोगों से बेवकूफ बनाया जाता है। आपको वेबसाइट बनाना सिखाएंगे, ये बनाना सिखाएंगे, वो बनाना सिखाएंगे। दोज पीपल कैन नॉट इवन परचेज अ नॉर्मल डोमेन ऑन देयर ओन। एक वेबसाइट से जाके वो डोमेन नहीं परचेज कर सकते हैं। कुछ नहीं कराया जाता है उन लोगों को। और ये राइट। जितने भी एकेडमीज और ये सब बैठे हुए हैं ना, स्कूल लर्निंग सेंटर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। दे हैव मेड एन एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये अगर कंप्लीटली देखा जाए ना अभीष्ट, तो देखा जाए तो सारे एजुकेशन सेंटर सभी यही कर रहे हैं। नॉर्मल पढ़ाई के लिए भी 12th तक के भी अगर पढ़ना है तो यही हो रहा है, और कॉलेज भी करना है तो यही हो रहा कॉलेज है। में भी यही हो रहा है। तो हम जाए तो जाएगा। आज की डेट में अगर आपको पढ़ना है, आई स्ट्रांगली रिकमेंड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु इज लाइक इन द लर्निंग फेज और दे वांट टू लर्न समथिंग, भाई जो बेसिक एजुकेशन है 12th तक, वो तो आपको कंप्लीट करनी ही करनी पड़ेगी। अब तो बेसिक 10+2+3 है, सो आप ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लो अपना फ्रॉम एनी डिसाइपल। एंड उसके बाद जो आपको सीख रहा है ना, आप उसकी मार्केट में उतर जाओ। आपको बड़े से बड़ा आईएम उतना नहीं सिखा पाएगा जितना वो मार्केट आपको 2 महीने में सिखा देगी। करेक्ट। वाह, दिस इज लाइक रियल लाइफ एक्सपीरियंस ले लो, बहुत बहुत सीख सीख जाओगे। जाओगे एंड ऐसे ही। आज की डेट में आई कैन लाइक, कुछ जितने भी आप बड़े बड़े बिलियनियर्स के नाम सुनते हो, किसी के डिग्री पे आईआईएम, आईआईटी या किसी बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का स्टैंप कुछ भी नहीं है। नहीं। दे हैव लर्न फ्रॉम ग्राउंड, दे हैव लर्न फ्रॉम द मार्केट एंड दे आर लीडिंग द मार्केट नाउ। यस, वेरी ट्रू। इतने लाइव एग्जांपल्स है, बट स्टिल पीपल वांट टू डू ऐसे जल्दी। हमारे लिए दो सिस्टम है ना, दो सिस्टम है। एक सिस्टम बोलता है अच्छे से बेटा स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, जॉब पे लग जाओ, बम पैसे कमाओ, इजी, सबसे इजी है। इजी है ये तो। और फिर वो नहीं समझ में आता उसके पीछे लॉजिक क्या है। जितना पैसा तुमने इन्वेस्ट किया उतना तुमको मिलेगा क्या? सैलरी 15,000 से तुम लोग क्या ही कर लोगे यार। आरओआई कैलकुलेशन नहीं है। दूसरा सिस्टम है। हाँ, आरओआई कैलकुलेशन आज की डेट में नहीं है। एंड सबको ये लगता है ना कि अभी ठीक है, अभी 15 मिल रहा है, कल 25 मिल जाएगा, फिर 35 हो जाएगा। नहीं होता है ऐसा। जब तक आप अपना हम्म, आरओआई नहीं कैलकुलेट हम्म, करोगे, यू विल फेल इन ऑल द डील्स ऑफ योर लाइफ, नॉट ओनली योर education or job, on in all the deals of your life, whether it can be personal or professional or हम्म। whichever you wish to do, you will fail, miserably fail. ये अगर स्कूल में पढ़ाते तो हम तो एटलीस्ट स्लेव्स तो नहीं होते ना अब किसी के। ये लोग चाहते ही नहीं कि हम ऐसे बड़े इस पे काम करें या कुछ ऐसा करें क्योंकि खुद वो का। उस एटमॉस्फेयर को प्रमोट ही नहीं किया जाता ना। आज की डेट में आपका वो एटमॉस्फेयर कोई द प्रमोट नहीं थिंग इज दे करेगा। हैव टू कीप एवरीवन इन द फर्स्ट सिस्टम एरिया। ऐसे ही करो, ऐसे ही चलाना है पूरा अरे तो देश, और ऐसे ही तुम्हारी लाइफ अब चलेगी। उसमें भी यही है ना, देखो जो ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बड़ी पुरानी कहावत है, ठीक है, कि सब पढ़ हम्म, लिख करके डीएम ही बन जाएंगे तो फिर उसके लिए क्लरिकल वर्क कौन करेगा। हम्म, ठीक है, तो ये वही है। सिचुएशन है। The schools are actually there to make you a slave. They want you to be an employee but not an entrepreneur. ये वो तो वो समझ ही आप, है। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट ले लो, स्टेट गवर्नमेंट ले लो, दे ऑल आर हम्म, इनटू दिस एंड इक्वली या इन्वॉल्व। किसी का ज्यादा है, कम नहीं है, देयर इज नो ग्राफ, सब बराबर है। वही। आई मीन दिस शुड चेंज फर्स्ट सो दैट किड्स ना ऐसे अनदेखे तरीके से भी अगर ट्रस्ट कर पाएंगे लोगों को, या फिर नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि वो तो नए होते तो एलियन होते किसी भी करेक्ट। नए कॉन्सेप्ट को लेके। वो बस चले जाते, उनको जो दिखा हाँ रहे यही होते उनको लगता है कि ऐसा ही होता है। जैसे अभी मैंने भी पढ़ाई की बहुत सारी, बाहर निकले तो यार प्रैक्टिकल कोई दुनिया अलग चल रही है। यहाँ हर छोटी छोटी चीज दिखा के दिमाग खराब कर रहे हैं, वो चीजें हमको दिख नहीं रही है। फिर बोलते कि कर लो अभी पेशेंट पे, लाइक पेशेंट मर जाएगा तो हम क्या करें यार। तुम बोल रहे हो लगा दो एनेस्थीसिया, कुछ हो गया कुछ उसको तो हो गया तो फिर उसके मजाक रिलेटिव है। और आप जानो, हमें क्या। तुम्हारे ऊपर है। हमको तो कुछ नहीं, हमने पढ़ाने का काम कर लिया, तुम्हारे ऊपर है अब सब। यही हो रहा है एक्चुअल सेंस में, यही हो रहा है। दिस इज ट्रू। आई मीन रिस्क ले रहे हैं बच्चे, लेकिन फंस रहे हैं खुद ही, उस रिस्क के चक्कर में खुद ही फंस रहे हैं। उनका कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। एंड एट द एंड पॉइंट दे फील लाइक कि कुछ ना करके खुद का स्टार्टअप ही करना चाहिए, देन दे गो इन दैट स्टार्टअप क्योंकि लेन अगेन। सो और वो दैट्स भी व्हाट द रीजन इसलिए नहीं इज। जा रहे हैं जूही, इसलिए नहीं जा रहे हैं बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। हम्म, वो इसलिए जा रहे हैं। बड़ी हम्म। लैविश चीज है यार, स्टार्टअप करेंगे हम लोग। हाँ, दिस इज
बड़ा made. लविश है यार। This हम looks like this, लोग this looked हम like लोग एक काम that. करते हैं, हम लोग एक ऐसा मोटर बाइक बनाएंगे जो पानी से चलेगा, और फिर हम स्टार्टअप इंडिया में जाएंगे, फंडिंग उठाएंगे वहां से, टीवी पर आएंगे हम लोग। ठीक है, शार्क टैंक में चलेंगे, इधर चलेंगे, उधर चलेंगे। नहीं, कुछ नहीं होता है। Literally यार, I mean they have to get into reality first. ये बहुत हो गया, बुक्स में कुछ भी बुक्स नहीं में है, निकलो कुछ नहीं बाहर। है, और आप बहुत जो हो गया। रियल वर्ल्ड में चल रहे हो ना, उसमें भी कुछ नहीं है। वो तो यार ऊपर ही दिखावा है ना, दैट इज सुपरफिशियल वर्ल्ड। वो तुम में वहां पर तुमको सच्चाई वो दिखेगी ही वहां नहीं। वाला वर्ल्ड वहां वो वहां सिस्टम वाला जैसा काम वर्ल्ड चल रहा वही है। है कि खुद हाँ। भी आना, 3 लोगों को और लेकर के आना सेमिनार में। Oh my goodness. Like this is what I want. This actual real life जो होता है ना, ये कोई ज्ञान देता ही नहीं है। बाहर सब बोलते हैं नहीं रे, हमने ये कर लिया, हमको ऐसे डील्स मिल गई, हमने कर लिया, फिर वो बड़ा हो गया, हमने इतना कर लिया 2 साल में 3 साल में। भाई 2 साल में 3 साल में कौन सा स्टार्टअप बड़ा कोई हुआ है भाई? स्टार्टअप नहीं बड़ा होता है। कंटेंट क्रिएटर को हिट नहीं मिलता 2 या 3 साल में। कुछ नहीं होता है 2 साल में। 2 साल में तो तुम सिर्फ सीखते हो, 2 पैर आगे लेते हो बस, और कुछ और नहीं कुछ होता। नहीं। आप कितना भी सोच लो, आई कैन गारंटी दिस ऑन दिस लाइव शो कि कोई बंदा आज की डेट में आकर के बोल देना कि यार मैंने 2 साल दिए अपने स्टार्टअप को, एंड मैं 800 में था, आज मर्सिडीज में आ गया हूँ। आई कैन नॉट बिलीव दिस। ये नहीं होता है। मैं तो हंस दूंगी उसके ऊपर पहले, बोले यार बेवकूफ मत बना, ठीक है, जो है वो बता। नहीं नहीं ऐसा बताना तो मत कुछ नहीं बता। होता है। या तो फिर तुमने कुछ झोल किया है, हम्म। जिसके चक्कर में कुछ दिनों बाद न्यूज़पेपर फ्रंट पेज पे आ जाओगे। ठीक है, या तो कोई और बात है। This is actually doubtful because it is ऐसा not कुछ going नहीं to होता work है। anyways. तो अभी जैसे नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जैसे अभी हमने इन लोगों के बारे में बात की जो हाँ, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, यार ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ जेन्युइन होते हैं जो एक्चुअल में ग्राउंड से काम कर रहे होते हैं, जिनको थोड़ा बहुत टाइम हो चुका होता है, लेकिन वो एक्सपोजर नहीं मिलता। तो how Digimon helps them to make it like a big for them, plus to get ease with the market and to help them where they want to reach. वी वर्क लाइक, हम ना उनको सबसे पहली चीज तो ये समझाते हैं, हमारा मेन मोटिव ये है कि सर डिजिटल मार्केटिंग हम करेंगे आपकी, ठीक है, बट वी हैव टू फर्स्ट कम अप विद अ मोटो, व्हाट इज द मिशन एंड द विजन ऑफ योर प्रोजेक्ट और योर कंपनी। until and unless ये दो स्टेटमेंट नहीं क्लियर होगा, हमें नहीं मिलेगा। एंड देन वी हैव टू प्लान द थिंग्स अकॉर्डिंगली। हमें सब प्लान करना पड़ेगा, कहाँ पर क्या होना चाहिए, कहाँ पर क्या चीज करनी पड़ेगी हमको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर आएगा आपका, एंड आपको खुद रेडी होना पड़ेगा टू, अगर लाइक आज की डेट में मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, एंड इफ आई एम रेडी टू गेट ऑल द क्लैप्स एंड अप्लॉजेस विच विल बी मेड फॉर मी, तो मेरे को गाली खाने के लिए भी रेडी होना पड़ेगा। हर कैंपेन आपको तालियां और लोगों की वाहवाही नहीं दिलवाएगा, आपको गालियां भी पड़ेंगी। ठीक है ना? सो यू हैव टू बी रेडी फॉर ऑल द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग, एंड देन आपको मार्केट में उतरेंगे हम लोग, एंड वहां पर क्या होगा ना, वी हैव टू टेक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। जब हम स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेंगे ना, देन ग्रोथ होगी। दिस इज नॉट अ लॉन्ग जंप रेस जिसमें हम लोग कूदते चले जाएंगे, विल गेट द गोल्ड मेडल। नो, हमें स्मॉल, आज की डेट में मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, आई जस्ट सिंपली टेल देम कि सर दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ योर कंपनी। आप बोलो चाहे जितना कि हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, फलाना ठिकाना जो बोलो, दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन, एंड आफ्टर 6 months विल रीच फ्रॉम हेयर टू हेयर, दैट्स इट। 5% की ग्रोथ is what we can offer you the maximum। कि आपके प्रोडक्ट की सेल, आपका एरिया डिसाइड करेंगे हम लोग, कहां पर होनी चाहिए, कहां नहीं होनी चाहिए, दैट इज द मैक्सिमम। उसके अलावा कुछ नहीं होना है। राइट। प्रोडक्ट की, अब सब सर्विस सेक्टर में आ जाता हूँ तो और सिर दर्द है हमारे लिए। सर्विस सेक्टर के जो क्लाइंट्स होते हैं उनके पास होती है सिर्फ और सिर्फ सर्विस। देन वी हैव टू लाइक, वो तो ना बीट अराउंड द बुश वाली सिचुएशन, उसमें इतना ज्यादा पढ़ना पड़ता है हम लोगों को कि नहीं ऐसा तो वैसा तो ऐसा तो ऐसा, बिकॉज वहां पर कोई पिन पॉइंट नहीं है ना। एक सर्विस
नहीं होती किसी के पास. दे हैव 10, 15, 20, 25 सर्विसेज. सबके इर्द गिर्द चलते रहते हैं हम लोग. तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट स्टिल वी हैव गिवन गुड रिजल्ट्स इन द सर्विस सेक्टर एज वेल. एंड सबसे ज्यादा हमारा गेम जो है वो सिर्फ कंटेंट का है. जितना अच्छा कंटेंट, जितना इजी टू अडेप्ट कंटेंट होगा, लोगों को जब तक मजा नहीं आएगी तब तक नो वन विल इन्वेस्ट इन योर प्रोडक्ट और योर सर्विस. And I have come to realize this thing, like you have to know your audience. जिन्हें भी तुम्हें ये सब चीजें देना है, मतलब बताना है या शेयर करना है, you have to know your audience. You have to know how they are active with it, what are they going to like, उनको क्या पसंद आएगा, क्या नहीं पसंद आएगा, how it is going to engage them in the specific activity that you're doing on the page or whatever. तो ये भी एक अलग तरीके का स्टडी होता है. यू हैव टू नो वेयर यू आर गोइंग टू गिव द सर्विस और मे बी पुट द प्रोडक्ट. आपको अपने ऑडियंस को समझना पड़ेगा, एंड एक आपकी जो ऑडियंस नहीं भी है ना, उनको भी टच करना पड़ेगा. व्हाई आई एम सेइंग सो, आपका अगर प्रोडक्ट है, इट्स अ फिजिकल प्रोडक्ट, इट इज एनी एफएमसीजी प्रोडक्ट और अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, आपको उसकी यूएसपी बनानी पड़ेगी. जब तक प्रोडक्ट में यूएसपी नहीं होगी, वो प्रोडक्ट नहीं बिक सकता. इधर रियल और फेक, यू हैव टू क्रिएट अ यूएसपी कि हमने ऐसा किया, वैसा किया, वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक है ना. और जिस दिन यूएसपी आपकी डिसाइड हो जाएगी, आपकी ऑडियंस क्लियर हो जाएगी, खत्म. यू कैन नाउ इजीली टारगेट द मार्केट. एंड उसके साथ साथ सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है फिजिकल प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट पैकेजिंग. Product packaging is also very, very important. आज की डेट में you might have seen n number of small businesses which are running on Instagram only, Instagram and maximum to WhatsApp. उनके प्रोडक्ट कुछ यूनिक नहीं है. If they are selling earrings or pendants or any XYZ accessories, कुछ यूनिक नहीं है. वो हमारे लोकल मार्केट में भी अवेलेबल है, सेम अवेलेबल है और बहुत चीपर प्राइस पर अवेलेबल है. यूएसपी क्या है? सिर्फ पैकेजिंग. दे कीप अ वेरी एस्थेटिक कलर टोन, कलर पैलेट उनका बहुत एस्थेटिक होगा, पैकेजिंग बहुत अच्छी होगी, और मतलब आप उस बॉक्स को ओपन करोगे, इट विल बी लाइक वाओ यार, इतना स्वीट है, ऐसे रखा है, वैसे रखा है. देयर विल बी कलरफुल थिंग्स जो कि आपको अट्रैक्ट करेंगे, एंड उसी का पैसा. प्रोडक्ट वो 10 रुपए का भी नहीं है, लेकिन आपने 1000 में सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि उसकी पैकेजिंग अच्छी है. So, दिखने में अच्छा है, वही फील है उसमें. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आज के डेट में तो भाई, अगर आपने अपने वो पार्टनर के लिए मंगाया है, तब तो वो अलग ही आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज होनी चाहिए. ठीक है. और आजकल के लाइक इफ समवन हैज अ गर्लफ्रेंड और उसको उसे कुछ गिफ्ट देना है, तो उसके दिमाग में होता है कि भाई एक आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज हो वहां पर. ठीक है. इसलिए वो और स्पेंड करने को रेडी है उन सारी चीजों पर कि हाँ अरे ठीक है, आप महंगा है कोई बात नहीं, हम इसको परचेज करेंगे बिकॉज उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है. सो दिस इज हाउ कंपनीज जनरेट रेवेन्यू. एंड यही हमारा पॉइंट होता है कि हम पैकेजिंग को और कितना अच्छा कर सकते हैं. राइट. अमेजिंग. आई मीन ये स्ट्रैटेजीज पता होती है तभी जाके वो थोड़ा सा धीरे धीरे सक्सेस पे पहुंचने लगता है. वो पता चलेगा ना कि यार हम मार्केट में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारे कॉम्पिटिटर कौन है. एक क्लोज मार्केट में मैं शॉप ओपन करके बैठ जाऊं और मैं कहूं कि आई एम सिटिंग इन अ मोनोपोली मार्केट, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. यू हैव टू compete first, then analyze your competitors, and then you can decide anything कि यार ये मोनोपोली मार्केट है कि किस तरीके की मार्केट में मैं बैठा हुआ हूँ, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. कॉम्पिटिटर एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट. तो बेसिकली न्यू स्टार्टअप्स जो आने वाले हैं, दे हैव टू नो द ऑडियंस, द मार्केट बेसिकली, एंड हाउ दे हैव टू मेक इट वर्क आउट देयर. लाइक जो भी नॉर्मल चीजें हैं, तुम उसको अगर सोचोगे, उसको छोड़ के भी अगर सोचोगे, तो बहुत कैलकुलेटिव चीजें भी है जो कि बाहर लीगली और क्या बोलते हैं उसे, लिटरल सेंस में एक्सेप्टेबल हो. तो बस बना दिया और हल्का सा पैकेजिंग कर दिया तो ऐसा नहीं होगा. यू हैव टू बी वेरी मच एस्थेटिक अबाउट एवरीथिंग दैट यू वांट टू पुट इट इन मार्केट में. पीपल आर लाइक क्रेजी अबाउट एस्थेटिक स्टफ्स. वो कुछ भी पैसा स्पेंड करने को रेडी है उसके लिए. ठीक है. एंड दे आर लिटरली स्पेंडिंग.
देयर आर एन नंबर ऑफ ब्रांड्स जो कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ अपने एस्थेटिक लुक की वजह से ही अवेलेबल है, ठीक है। एंड करेक्ट। देन देयर इज अ पार्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, celebrity marketing, etc., etc., etc. So these things work as a catalyst. That's it. अमेजिंग अमेजिंग। तो जैसे अभी ये तुम्हारा जर्नी था, तुमने अपना बहुत सारी चीजें सीखी, तुमने चीजें देखी भी है और तुमने एक्सपीरियंस भी किया है, तो उसमें से स्टार्ट से लेके तो एंड तक, अभी तक के, नॉट एंड तक, अभी तक के हार्डेस्ट और एकदम टफेस्ट पार्ट क्या था जर्नी का? सी जर्नी का, बिकॉज अभी जर्नी कोई ऐसे बहुत लंबा डिस्टेंस कवर नहीं किया है हम लोगों ने, इट्स हार्डली 2 to 3 years, बट जर्नी में ना सबसे टफेस्ट पार्ट वही आता है जब हमें वी कैन से फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। फाइनेंशियल लॉसेस कैसे होते हैं कि अब हमने किसी का काम किया 2 महीने, 1 महीना 2 महीना उसने बढ़िया काम कराया, यहाँ ऐसा भी करना है, अभी ये करो, मेरी टीम को कॉल आ रहा है, मेल आ रहा है, ऐसा होगा वैसा होगा, एंड देन एंड में जब हमने इनवॉइस भेजा कि सर 1 महीना हो गया, इसका प्लीज पेमेंट क्लियर करवा दीजिए, हाँ मैं करवाता हूँ, 15 दिन और कट गए, और फिर यार समझ नहीं आ रहा है, तुम रहने दो, हमने किसी और को हायर कर लिया है, तो रहने दो यार, क्या ही काम किया है, किस बात का पेमेंट करें, ये है वो है। तो वो सिचुएशन में ना इतनी गुस्सा आती है कि भाई तुम अभी तक तो हम लोगों के पीछे पड़े हुए थे, हर दूसरे दिन तुम मीटिंग रख रहे हो, हर दूसरे दिन ये कर रहे हो, आज तुम करो किस बात का पैसा। तो ये बड़ा हमारे लिए टफ हो जाता है, बिकॉज अब ये सिचुएशन ऐसी होती है ना जो मुझे अकेले हैंडल करनी पड़ती है, बिकॉज बाकी टीम मेंबर्स हैव टू लाइक बेयर ऑल द एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग, एंड फिर वहां पर वो दिक्कत वाला सिचुएशन हो जाता है कि यार अब कहाँ से अरेंज करें, ये इसने तो यार फटका लगा दिया मेरे को 15,000 रुपए का, अब ये अरेंज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक, लाइक आई लिटरली विश कि इस तरीके के लोग मार्केट में कम से कम एग्जिस्ट करें, और अगर एग्जिस्ट करते भी हैं तो यार काम करवाया है अगर तो पैसे दे दो, और नहीं करवाया है तो कोई बात नहीं है। वो एग्जिस्ट ही उसी के लिए कर रहे हैं, वो नहीं देना चाहते हैं पैसे, तो तुम ऐसे सीधा बोलो, ऐसे लोग ना आए प्लीज मत करो काम, रहने दो, खुद कर लो अपने हिसाब से। ये हाँ, वही बोल रही हूँ। इफ यू आर दैट स्मार्ट दैट यू कैन गेट द मनी और मे बी गेट द सर्विसेज डन, तो तुम उतने स्मार्ट बन जाओ कि अपना काम खुद कर सको। अब मार्केट में ना ये लोग ऐसे होते हैं कि लाइक दीज आर, हाँ नहीं देंगे, जो करना है कर लो। हाँ, ऐसे तो हजारों है यार, कैसे हैंडल कर वहां सकते पे हैं क्या इनको? कर लेंगे, गोली तो मार नहीं दूंगा मैं, You can't do anything. इसी कर लेंगे। हम लोग परस्यू करते हैं, थोड़ा सा कहते हैं कि सर अब आप प्लीज क्लियर कर दीजिए, आपने काम करवाया, वी हैव एवरी रिकॉर्ड, ये वो, नहीं यार कोई काम नहीं हुआ है, तुम लोग अपना जो करना है कर लो। सर ठीक है, वी विल फिर सी एवरीथिंग लीगली, हाँ जो करना है जाओ कर लो, ये है वो है, ठीक है, कुछ नहीं होता, एंड ऑफ द डे वी हैव टू सिट बेयर हैंडेड। बट यही लाइक इस तरीके के लोग मार्केट में ना आए, मत करवाओ यार, ठीक है, करना है करो, अपने हिसाब से कर लो, जो बनाओगे अपना बनाओगे, हमें छोड़ दो। ओके, तो जैसे हर बार हमारे जर्नी में ना कुछ नई चीजें पता चलती है, उसमें जो नई चीजों में से एक सबसे बेस्ट चीज होती है सच। तो तुमने ऐसा कौन सा सच देखा है अपनी जर्नी में? मैंने अपनी जर्नी में जो सबसे बड़ा सच देखा है अभी तक, दैट इज कि द वर्ल्ड इज फेक, कंप्लीटली फेक। स्टार्ट करेंगे आप कुछ भी, इधर यू स्टार्ट एनी न्यू जॉब, एनी न्यू बिजनेस, स्टार्टअप, एनीथिंग, आप स्टार्ट करोगे, देयर विल बी पीपल हु विल बी क्लैपिंग एंड अपलॉजिंग फॉर यू। आप थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करोगे, यू विल सी पीपल की वो लोग ना धीरे धीरे छट रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, मतलब दे आर गोइंग इनटू सम ऑफ द अदर थिंग्स। एंड देन आप जब अपने काम में भी आओगे ना, देन यू विल आल्सो थिंक यार सब तो साले झूठी बोल रहे हैं यहाँ पर मेरे से, ये भी झूठ बोलता है, वो भी झूठ बोलता है। तो द वर्ल्ड इज कंप्लीटली फेक, इट्स जस्ट वही वाला सीन है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ठीक है।
आखिर वही आ वही आ जाते हैं. जाते हैं ना अपन यू भी. शुड नेवर लाइक हाँ रिलाय ऑन जाने. एनीवन. आपका अपना बिजनेस है, आपकी अपनी जॉब है, ठीक है. हम्म. आपको कोई शायद जॉब दिला सकता है, कोई आपका बिजनेस स्टार्ट करवा सकता है, बट नो वन विल हेल्प यू टू रन. खुद करना है सब कुछ. जो आते हैं ना मेरे से, मैं ऑनेस्टली बताऊं जी, देयर वर अराउंड 50 to 60 of people in my very early stages who came to me. अरे भाई बहुत बढ़िया तुमने स्टार्ट किया है यार, मेरे ये एक जानने वाले हैं, वो एक जानने हम्म. वाले हैं, उनके यहाँ से मैं तुम्हें दिलवाता हूँ काम. उनका यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, अरे महीने का 1.5-2 लाख रुपया खर्चा करते हैं वो तो, ये करते हैं वो करते हैं. सो आई ऑल्सो हम्म. स्टार्टेड गेटिंग होप्स कि हाँ यार, मतलब 1.5-2 लाख नहीं, 15-20 हजार भी खर्चा कर दे मेरे साथ तो वेल एंड गुड. तो लोगों ने हम्म. फिर, अब जब आप ऐसा सुन लेते हो ना तो यू कम अप विद अ होप कि हाँ यार यहाँ से काम मिल जाएगा. हाँ. तो फिर हाँ हाँ भाई मैंने फोन किया है, वो कल मिलने को कह रहे हैं, परसों मिलने को कह रहे हैं. एक आध लोगों ने मीटिंग करवाई भी, तो देवर मीटिंग में ही समझ में आ गया कि दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड. तो हम्म. सबसे पहला यही हम्म. सीन था कि यार ये क्या हो गया यार. मैं तो सोच रहा था कि 2 दिन में बिल्कुल मैं तो पिक्चर ही चेंज कर दूंगा, या तो मेरी पिक्चर चेंज होने पर आ गई है. तो ये हम्म. सिचुएशन होती है. लाइक आप किसी पे भरोसा मत करो, जो है खुद पर है. अपने पे भरोसा रखो, अपने हिसाब से करो. अच्छा होगा बुरा होगा सब आपके लिए होगा, ठीक है. एटलीस्ट हम्म. कोई आपको ये नहीं बोलेगा ना, आपके अच्छा होने पे कोई क्रेडिट भी नहीं ले ले पाएगा आपका कि अरे मैंने खड़ा किया है उसको, मैंने ये किया, मैंने वो किया. और बुरा होने पे तो वैसे भी कोई नहीं आता है. तो हम्म. नहीं, बट कुछ कुछ लोग ना बहुत बड़ी बड़ी एडवाइस देते हैं, और जब उनके लाइफ में हम लोग झांक के देखे तो पता चलता है कि वो खुद ही कर रहे हैं, सब कोई कर ही नहीं रहा है. तो फिर व्हाई डू यू वांट टू काउंट ऑन सच पीपल? पॉइंट आई क्या डोंट है ना अंडरस्टैंड. जी, जब आप नए नए मार्केट में होते हो, एंड लाइक आई डोंट नो, हर किसी का अपने अपने एक्सपीरियंसेस है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है. जब आप नए नए मार्केट में होते हो ना, तो हम्म. आपको लगता है कि नहीं यार, सब लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं. एंड दैट टू आई वाज इन लाइक जस्ट अभी अभी वो होता है ना, अंडे से बाहर निकले वाला सीन था. तो हम्म. ये था कि हाँ यार, हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है, दीज आर सच गुड पीपल एंड एवरीवन इज रेडी टू हेल्प मी आउट. ऐसा हम्म. करेंगे मेरे साथ, दे आर सो मच हैप्पी विद मी. आई वाज इवन सो हैप्पी कि यार आई हैव सच गुड पीपल अराउंड मी, मतलब आई एम सो लकी. ऐसा वैसा एक महीना नहीं हम्म. खत्म हुआ था, सब समझ में आ गया. और कितना अच्छा है, ये कल तक खुश थे, बात कल तो तक खुश सही थे, है आज यार, फोन नहीं बात उठा रहे तो मेरा. सही है. ओह गुडनेस. हाँ, तो रियलिटी जानना जरूरी हो जाता है यार. अगर नहीं पता चलेगा तो पता नहीं कौन से समय तक वो तुम्हारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, या तुम्हारा वैल्यू बर्बाद कर रहे हैं मनी के ऊपर, या जो जी कुछ भी देखो, है. तो इट्स बेटर कि तुम तभी के तभी दिखा these दो और निकलो people are यहाँ से. like na, these people, I call them you can say crabs or parasites. पैरासाइट कि इज द बेस्ट वर्ड. आई पैरासाइट, फील आई कॉल सच पीपल पैरासाइट्स. पैरासाइट इसलिए है ना कि खुद का तो अच्छा हो नहीं रहा है, कोई कुछ करने जा हम्म. रहा है तो दे आर लाइक कि हाँ ठीक है, करो करो करो, हम तो अपने हिसाब से. अच्छा, उस सामने वाले बंदे को पता है कि कुछ नहीं है उसके पास, हम्म. वो 15,000 छोड़ो, हम्म. मुझे 15 रुपए का काम नहीं दिलवा सकता है, ठीक है. बट दे विल बी लाइक अरे मैं सब करवा हाँ. दूंगा, ऐसे करवा दूंगा, वैसे करवा दूंगा. एंड देन दे एंड अप फूलिंग अराउंड. दैट्स इट. दीज पीपल आर पैरासाइट्स. ये एक बार अगर आपके साथ चिपक गए ना, दे विल फिनिश यू ऑफ. खत्म, कुछ नहीं बचेगा फिर उसके बाद. हम्म. करेक्ट है. इवन आई अंडरस्टूड दिस, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, बहुत लोगों ने यही बोला है, क्या ही चलेगा, कौन ही आएगा तेरे पास, कोई बैठा नहीं है इतना फ्री जो तेरी बातें सुने, या तू उनको सवाल पूछे तो जब बताएंगे अपने बारे में. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. और जिनको मैं सोचती थी कि जो मेरे पिलर्स है, जो मेरे अच्छे फ्रेंड्स है, वो एक एक भी वो मेरे शो पे नहीं है अभी तक. 2 साल हो गए, एक को भी. मेरे को समझ गया था भाई, इनको इनको तो लेने लायक है ही नहीं ये लोग, इनको क्या ही पूछ लूंगी और ये क्या ही बता देंगे, इनके पास नहीं है, कुछ है ही नहीं सब बोलने को. सब लाइक पीपल फेक अराउंड. कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हाँ, ये होगा उनके रियलिटी पास. है.
ना एक लिंक होगा, ना एक भी सोर्स होगा, ना एक भी जैक होगा, हम्म। और बातें इतनी बड़ी बड़ी करवा लो कि भैया बस अमित शाह से मिलकर आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं ये। और जब मेरे को पूछते हैं ना कि तूने ये सब कैसे किया, कहाँ से किया, यार लकी है यार तुम, बोली हाँ मैं लकी हूँ, तुम्हारी एक कृपा है, तुम्हारे वजह से हुआ है। आए आज तुम की लोग नहीं होते तो आज यार की कहाँ डेट जाती मैं। पे आज की डेट पे when I meet those people again, to be very honest, मैं मिलना नहीं चाहता हूँ, बट कभी कदार अगर मिल हाँ। जाते हैं then I am like, वो लोग बोलते हैं अरे यार अभीश भाई तुम तो बिल्कुल यार बदल गए हो, स्टाफ ऑफ ऑफिस ऑफिस खड़ा कर लिया, और ये हो रहा है वो हो रहा है। then I will be like, हाँ। हाँ भाई हो रहा है भाई, तुम इन लोगों का सपोर्ट था इन सरकास्टिक वे, तुम इन लोगों का सपोर्ट था यार, तुम लोगों ने स्टार्टिंग में इतना Me too। सपोर्ट किया, ठीक है यार, हाँ, शुरू तुम से लोग लेके तो यार अभी अभी तक साथ से में ही हो मारते हो, भाई यू तुम हैव लोग। बीन माय पिलर्स। नहीं यार अभी अच्छा, दे टेक इट इन अ वेरी एंजॉयबल मैनर, नहीं यार अभी आज भी तुम बोलो हम लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम बताओ कोई दिक्कत है। तो मैंने तुम कब थे? कहा नहीं नहीं भाई, आप लोग की इतनी कृपा है, अब सब ठीक है, ओह, अब कुछ नहीं इतना ही काफी है। चाहिए। ओह, बाप रे। लाइक मैं तो इस चीज का मजा ले लेती हूँ भाई, जो मेरे को बोलता है ना कि यार तेरा ये जो चलेगा ना इसको 10-15 साल तो लग जाएंगे, मैंने बोला चलो ठीक है, तुम्हारा 2 साल में हो गया, क्या मिल रहा है तुमको। मैं मैं ऐसे ही इतना कार्य। मतलब मुझे बड़ी मजा आती है, मेरे कॉलेज में ऐसे मेरे बहुत सारे बैचमेट्स थे, हम्म। दे लाइक यूज्ड टू वॉक मी अराउंड, अरे हम्म। एमडी साहब आ गए, इज द मैनेजिंग डायरेक्टर, ये है और वो है, ठीक है हम्म। आज की डेट में, ठीक है, तो पीपल जब हमारी मेरी बात होती है या मिलते हैं वो लोग कभी भी, अरे यार हम लोग को पता था अभीश भाई कुछ अलग हम्म। करेगा, हम लोग साला यहाँ परेशान, हाँ ओके, इसमें भी फिर हम क्रेडिट लोग वही को पता था खाएंगे कि है ना, अभीश कि आइडिया उन्हीं का था और अभीश कुछ उन्होंने अलग सोच लिया था। करेगा, इसके अंदर स्कूल से यही चीज थी। मैं मैं अपने मन में सोचता हूँ कि इतना तो मेरे मम्मी पापा ने नहीं रियलाइज किया था जितना तुम लोगों ने कर डाला। जिनके साथ तुम रहते हो उनको ही नहीं पता था, हाँ इनको कहाँ से समझ गया। हाँ, आई नो देर आर पीपल लाइक दिस, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं हमको हेल्प कर रहे नहीं होते हैं, बिकॉज ऐसी सब चीजें करके पता है, हम लोग बहुत अगर आगे बढ़ अगर जाते हैं उनकी वो वजह से। एक शौक नहीं मिला होता ना उस टाइम पर, अगर उस टाइम पर मिल जाता तो मैं हमेशा उनके भरोसे रहता कि यार ये काम दिलवा देगा वो काम दिलवा देगा, हम्म। मैं कर दूंगा काम हो गया, बट उन्होंने साथ छोड़ दिया, क्या जो भी हम्म। सिचुएशंस हुई उसकी वजह से आई स्टैंडर्ड ऑन माई ओन, लाइक आई स्टूड अप एंड स्टार्टेड वर्क, यस। दिस इज द थिंग, बट आई लिटरली एंड आई डोंट लाइक पीपल सेइंग दैट कि जुई तू एंजॉय नहीं कर रही है तो बस सेशंस करती रहती है, काम में बिजी रहती है, ये लिखना वो लिखना, ये पढ़ना वो पढ़ना। लिव अ लाइफ, गो टू पार्टीज, स्पेंड सम मनी, है ना। खाना खाने बाहर जाओ, घूमो। यार डोंट बी सच अ बोरिंग पर्सन नाउ, इज लाइक ठीक है, ले लिया तुम्हारा ज्ञान, अब देखते हैं मेरे पे कितना अप्लाई होता है। बट आई हैव नेवर बीन दैट काइंड ऑफ पर्सन यार, आई मीन नहीं, कुछ करने के पीछे ये सब I करना have नहीं था मेरा कि just मैं एंजॉय करूँ बाहर just जाके, have a दिस इज टू single मच। question to these people, that I'm ready for all the outings, parties, and enjoyments. There's just one condition, that you have to pay all my bills. If you're ready to do so, आर यू एबल टू? if you are ready to do so, आज ही चलो। माय गुडनेस, लाइक इट इज एक्चुअली अर्न ट्रूथ कि रियल में जो भी लोग तुमको हम्म, दिखने वाले हैं उन पे भरोसा हम बिल्कुल कर नहीं कर ही सकते। नहीं सकते। जो इंट्यूशंस आती है ना वो समझ में आ जाता है कि यार हमारे अंदर कोई ऐसा बोल रहा है कि भाई मत जा मत कर, तो मत ही करो। करेक्ट। दैट विल बी ऑलवेज राइट। आई फील दैट। ओके, तो जैसे अभी एंड ऑफ द सेशन की तरफ पहुंच रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि सेशन एंड हो क्योंकि ऐसे बहुत सी चीजें हैं बोलने को, लेकिन यार ऐसा क्या मैसेज दोगे तुम बाहर के जेन्युइन लोगों को जो लिटरली कोशिश कर रहे हैं मार्केट में उतर के कुछ अच्छा और बड़ा करने की, फॉर द पीपल आउट देयर, तो उन्हें क्या एडवाइस दोगे? माय लाइक सिंपल एडवाइस इज दिस, कि आप मार्केट में अगर सही में कुछ करने आए हो, लाइक एवरीवन सेज हाँ हाँ मैं बहुत जेन्युइन हूँ और मत करो,
ठीक है, जस्ट एनालाइज द मार्केट, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, ठीक है ना, एंड उसके बाद आगे बढ़ो। जब तक गिरोगे नहीं, उठ के चलने का मजा नहीं आएगा। तो पहले जाओ, एनालाइज करो, सीखो, गिरो, एंड इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ स्पून फीडिंग, प्लीज स्टॉप इट। क्योंकि जिस दिन आप स्पून फीडिंग पर आ गए ना, मार्केट में ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं, आपको भी ले जाएंगे, स्पून भी ले जाएंगे, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ेंगे। राइट। तो इस चीज को समझो, एनालाइज करो, एंड तब कोई स्टेप लो, तब कुछ इन्वेस्ट करो, इधर योर मनी, योर टाइम और एनर्जी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट, तभी करो जब मार्केट को समझ लो, वरना रहने। ठीक है ना, सिंपल मैसेज। वंडरफुल, नाइस। और जैसे तुमने स्टार्टिंग में ये बताया था कि कोई भी स्टार्टअप इतने टाइम में नहीं होता है, तो आई वुड ऐड दिस टू पीपल राइट नाउ कि मत करो जल्दी किसी चीज की। जल्दी जल्दी में शायद कोई गलत स्टेप ले लो, और इन द सेंस ऑफ मेकिंग इट लाइक मोनेटाइज हो जाए, उस चक्कर में तुम कोई गलत स्टेप ना उठा लो। तो इट इज लाइक ग्रेजुअली करो, नॉर्मली करो। आई नो इट्स अ पर्क आउट देयर टू अर्न लॉट ऑफ मनी, बट होगा क्या मिलने के बाद भी, इफ यू नो दैट इट इज नॉट द हार्ड अर्नड मनी, इट इज जस्ट फ्रॉम समवेयर और द अदर। तो अगर वही करना था तो फिर why are you even sitting in the market and saying that you are a genuine person? So gradually करो, आराम से, पेशेंस रख के, और नहीं भी होता है तो कीप डूइंग इट। यू हैव टू फेल एट सम पॉइंट। जितने फेलियर्स देखोगे तभी कहीं ना कहीं विनिंग मिलेगी तुम्हें। Until unless you fail, जब तक आप बिल्कुल निराश होकर के बैठ नहीं जाओगे ना, आप कुछ नहीं कर सकता, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो वो पेन जब भी रहता है ना होता पीछे, है ना, तुम्हें धक्का देने जो के लिए, पेन पुश होता है करने ना के लिए। आपके फेलियर्स में, ठीक है, दैट पेन लाइक triggers you to do something much better, much better what you were doing earlier. तो ये बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं ना कि मेरा तो फेल हो गया, तो मेरा तो वो, मैं बंद कर दूंगा कंपनी, ये कर दूंगा। भाई मत करो, फेल हो गए ना, जीत जाओगे। Like I agree to understand this from your journey. Like you are being consistent from like 3 years now, and still you feel that we haven't covered our journey yet. We haven't covered that years yet of knowledge and experience. तो यही से सीखने मिल जाता है कि अगर कुछ स्टार्ट करो तो उसको फिनिश करने के हिसाब से मत करो। कहीं ना कहीं पहुंचना है, कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करना है, लोगों की तरफ एक ट्रस्ट गेन करना है, अपना नाम कमाना है, उस हिसाब से करो। सिर्फ पैसे कमाने उस हिसाब से मत करो। इट इज मनी यू कैन नॉर्मली गेट एनीवेयर। तुम छोटे मोटे काम कर लो, तुमको वैसे भी पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इज्जत से कमाओगे तो दैट विल बी लाइक मोर सेटिस्फाइंग टू यू, right? So I have learned from this journey of yours. And there's one more thing I would like to add over here कि भाई देखो, आज की डेट में ना, मैं कह रहा हूँ पैसे कमाने के पीछे भी मत भागो। मतलब don't even go for 5 to 6,000 or whatever you are getting it. Once you will be skilled ना, एक बार तुम काम करना सीख जाओगे, people are ready to pay you in lakhs. थ्योरेटिकल नॉलेज पे मत जाओ, खत्म हो जाओगे। right. कुछ नहीं है थ्योरेटिकल नॉलेज। बड़े बड़े लोगों ने बुक्स लिख दी, उसके थ्योरम्स बन गए, आपने रट लिए, आपने एग्जाम में लिख दिया, आप पास हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट वो आपको जॉब नहीं देगा, और अगर उसने जॉब दे दिया है, ठीक है, तो वो भी आपको जॉब में खत्म कर देगा। तो आप पैसे कमाने के पीछे मत जाओ, जस्ट लर्न हाउ स्किल्ड यू कैन बी। पैसा अपने आप चलाएगा तुम्हारे पास, और इतनी ज्यादा क्वांटिटी में आएगा ना कि तुम 5,000 सोच रहे हो, तो 5 लाख आ गया। तो खुद को बिल्ड करो उसके साथ साथ। जैसे तुम स्टार्टअप तो बिल्ड कर ही रहे हो, हाँ, राइट। सो दैट इज लाइक कंप्लीटली प्रोपोर्शनल टू दैट। मेहनत करोगे तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। पैसे के पीछे मत ही भागो, कुछ नहीं होने वाला, राइट। ओके, तो वी हैव कम टू दिस एंड पार्ट, जिसमें मैं हमेशा फीडबैक मांगती हूँ मेरे जो भी गेस्ट आते हैं शो पे।
तो क्या है तुम्हारा So फीडबैक अभी? first of all, I would like to congratulate you and your team कि you guys are doing really very well and जिस तरीके से you are like getting in touch with different people, giving them a platform to share their story. This is amazing. And to be very honest, like I had a wonderful session interacting with you. ठीक है, and I'll be looking forward to meet Mhm. you and your team soon. And like Yes. I'll just give you a just Mhm. small clap for everything. ठीक है, Thank you so much. and I wish you all the very best to you and your team. And I'm waiting to see the Legit Talks to be one of the most popular show of India or Asia, so that I can proudly say कि हाँ यार मैं गया था पहले इसमें एक बार, Please. मुझे बुलाया गया था, मैं गया था वहाँ पे. वो दिन आएगा, थोड़ा टाइम है लेकिन Yeah, पक्का I wish आएगा कि इंशाल्लाह. आए जल्दी आए, so we all can enjoy that moment. यस, थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग आवर शो. लाइक ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ सवाल ऐसे ही पूछे, मेरे पास पूरा सेट बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन मैं एक्चुअल में विद द फ्लो गई हूँ क्योंकि आई नो आई हैव एक्सपीरियंस्ड दोज थिंग्स जहां पर मैं भी एक्नॉलेज नहीं थी, मुझे भी कोई ज्ञान नहीं था कैसे करते क्या रहते हैं, एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, एनालिसिस का मतलब क्या होता है. आई एम अ डॉक्टर यार, आई वोंट बी एबल टू गो इन दैट फील्ड डायरेक्टली. तो digital marketing and content creation, entrepreneur, these are very key terms out there. ऐसा नहीं है कि अगर तुम उस चीज में हो नहीं तो तुम्हें पता नहीं होना चाहिए. You नहीं should know. रखोगे तो कुछ नहीं कर Why not? पाओगे आप आज के मार्केट में. हाँ, you have to be flexible enough. You have to say like हाँ मुझे इतना सब कुछ आता है, I know it. अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो सुनना ही नहीं चाहते, जो सोच के बैठे कि तुमको कुछ आता ही नहीं, तो हाँ गधे बनो उनके सामने. नहीं यार, गधा भी होशियार होता है. कुछ भी मत बोलो उनके सामने. Be dumb, act dumb, that is fine, show that to them. And then जब तुम्हारे जैसे सक्सेसेस होते हैं और फिर जब लोग देखते हैं कहीं ना कहीं तो बोलते हैं यार जो तो यहाँ तक पहुंच गई. बोला हाँ यार यहाँ तक पहुंच गई मैं. So the thing is, the people who are affecting your success, उनको उनके तरफ ध्यान मत दो. जो people है जो तुम्हें फोर्स कर रहे हैं आगे जाने के लिए, उनके तरफ ध्यान दो. ये तो मैंने सीख लिया है. और तुम्हारी जर्नी में तो ऐसी ऐसी चीजें, ट्रूथ देखी है मैंने कि मैं रिलेट कर पाई उन सब चीजों को एक्चुअल सेंस में. और मुझे लगता है कि जिन्होंने भी देखा है वो लोग भी कहीं ना कहीं रिलेट किए ही होंगे, क्योंकि हर घर में एंटरप्रेन्योर निकलने वाला है बेटा. कुछ देख जाओ तुम, 2-3 साल बैठ जाओ, कहीं ना कहीं कर बच्चे ही रहे. एंटरप्रेन्योरशिप कर ही रहे हैं, चालू हो गया है. तो तुम्हारी जर्नी बहुत इंस्पिरेशन होगी उनके लिए कि यार चलो हम भी I कुछ can कर contribute सकते हैं, some हम of the अभी other इससे thing कुछ to them. पूछ लेंगे. यू आर ऑलरेडी, ये सब अभी जाने वाला है शो. अभी हम लोग एक दिन पहले जो हमने किया वो गया नहीं, इसका मतलब ये था कि वो आज जाने वाला था. Thank तो you. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड योर अमेजिंग जर्नी. इट इज गोइंग टू हेल्प एवरीवन हु विल बी वाचिंग अस. एंड अगेन अगर कुछ ऐसा सोच रही हूँ मैं कि कोई नए एंटरप्रेन्योर्स, न्यू बिजनेस स्टार्टअप्स अगर आए हैं, उनके साथ एक साथ बैठ के ग्रुप में बात करूँ, तो अगर तुम्हारा नाम अगर दिमाग में पहले ही आ जाए तो आई विल जस्ट पिंग यू एंड आई विल से लाइक ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, तो जस्ट थोड़ा सा और आधा एक घंटा निकाल लेना. Definitely. ठीक है. Thank you so much. ओके, थैंक यू Thank सो you. मच देन. सी यू. Bye bye. बाय. Thank you so much, guys, for watching our talk show. I would really love to have some recommendations from your side on what kind of stories you want to listen to more in the comments. And after watching this video, if you feel that this person's journey relates or connects to your people, share them this link. And also, for more such amazing, inspiring stories, you need to hit the subscribe button. And do not forget to press the bell because you need to get notified on every latest video of our talk show. Thank you so much, guys. See you next time. And let's know the next unknown very soon. Bye.